Hello friends, welcome to WebWorld Zone. Today we will see how to decorate text in HTML with CSS. So before starting, if you have not subscribed to our channel, please subscribe to know about the latest update. So first of all, I have taken a paragraph and it is looking like this. Now let's start writing CSS. So I'm taking a style tag and then taking a selector here is paragraph. So first property is color. So I want to change the color of paragraph. So for this I can give the color name. So color देने का तरीका होता है या तो we define color name, ठीक है, like we write gray. So here color is gray, or we can define blue and red, whatever, ठीक है. So this is the way of giving color with name. Then by hex code, like if you want to give black color, then black hex code is #000 with the help of hex code. ठीक है, ये हो गया, ये तो black का हो गया hex code. And then if you want to give another hex code, like यहाँ से कलर पिक भी हम कर सकते हैं, ब्लू, एंड ब्लू का हेक्स कोड ये हो गया, एंड इस तरीके का यहाँ से ये हेक्स कोड हो गया. ठीक है, देन वी कैन गिव RGBA रेड ग्रीन ब्लू एंड A इज़ फॉर अल्फ़ा. तो अगर RGBA फॉर्म में इस तरीके से भी हम कलर को दे सकते हैं. ठीक है, तो ये तो 3 तरीके हो गए कलर को देने का. देन टेक्स्ट अलाइनमेंट. ओके, so text alignment में we have text align, that is left is a by default text alignment, so text will be left align. And if we give text align right, it will start from the right side. And text align property center, it will be center. ठीक है, and then text align justify is starting point and the ending point will be in a line. Like if we give text align justify, so you can see the difference. If I take 2 paragraphs, so see in the browser, the first point creates a line and the last point creates a line. So this is the difference. Text align justify, and it creates an unusual spacing between the characters. ठीक है, to maintain this alignment. So it's a kind of newspaper format. And ये हो गया text align justify. And if we do left, so unusual spacing जो थी इसमें वो हट गई इसमें. ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टी हो गई, टेक्स्ट लाइन, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई. देन व्हाट वी हैव टेक्स्ट डेकोरेशन. टेक्स्ट डेकोरेशन में इफ यू वांट टू गिव लाइन बिलो द टेक्स्ट, सो इट इज टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, देन ओवरलाइन. टेक्स्ट डेकोरेशन ये ऊपर की तरफ लाइन हो गया टेक्स्ट में. ठीक है, ये टेक्स्ट के ऊपर लाइन हो गया इस पैराग्राफ में, यहाँ पर ये इसके ऊपर हो गया. जितने भी टेक्स्ट हो गए ये इसके ऊपर ऐसे लाइन क्रिएट कर रहा है. देन टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू, ये इस तरीके से क्रॉस कर देता है इससे. जैसे कि हम ओल्ड प्राइस दिखाते हैं एंड न्यू प्राइस, तो ओल्ड प्राइस में ऐसे हमें दिखाना होता है, तो इस तरीके से हम टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू कर सकते हैं. ठीक है, एंड देन उसके बाद होता है टेक्स्ट डेकोरेशन नन. Text decoration, then text transform. Text transform first is if we want to write in uppercase, all the letters will be in uppercase. Okay, अभी यहाँ पे text decoration मैंने यहाँ none कर दिया. ठीक है, by default none होता है.
एंड यहाँ पर है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, तो ऑल लेटर्स विल बी इन अपर केस एंड all letters will be in lower case, and then capitalize, the first letter will be capital, first letter of every word will be capital, so this is capitalize. Okay, and then text transform, the last one is none. ठीक है, तो ये तो हो गया इसकी प्रॉपर्टी हो गई. Text align, text decoration, text transform, then we have text indent. Indent suppose 10 pixel. 10 pixel क्या करेगा, means it will take the 10 pixel space from the beginning. यहाँ से इसने 10 पिक्सल का स्पेस ले लिया, देन फिर ये स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो गया टेक्स्ट इंडेंट. ठीक है, उसके बाद वी हैव लेटर स्पेसिंग. सो फॉर दिस वी हैव letter spacing. Letter spacing में suppose we give letter spacing of 0.5 pixel. It means it will create a spacing between all the letters by 0.5 pixel. 1 pixel की spacing दे देते हैं. इस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं लेटर की spacing. उसी तरीके से यहाँ पर होते हैं, जैसे लेटर स्पेसिंग है उसी तरीके से वर्ड स्पेसिंग भी होता है. ठीक है, इट विल क्रिएट स्पेसिंग बिटवीन द वर्ड्स. 10 पिक्सल का गैप हो गया, लेटर स्पेसिंग यहाँ से रिमूव कर दिया, तो इट विल क्रिएट स्पेसिंग बिटवीन ईच वर्ड्स. ठीक है, तो ये हो गया लेटर स्पेसिंग. वर्ड स्पेसिंग 2 पिक्सल. ठीक है, देन वी हैव टेक्स्ट शैडो. Text shadow, if we want to give some shadow to the text, so this value is from left shadow, then top se shadow, and then this is the radius, and the last one is color. कलर को इस तरीके से हम हेक्स वैल्यू में दे सकते हैं, नेम से दे सकते हैं, और RGBA से दे सकते हैं या RGB से दे सकते हैं. ठीक है, सो इट इज क्रिएटिंग अ टेक्स्ट शैडो लाइक दिस. ठीक है, यहाँ पे मैंने सपोज यहाँ पर ये दे लिया मैंने रेड. ठीक है, तो ये एक शैडो क्रिएट कर रहा है 1 पिक्सल. दिस इज टेक्स्ट शैडो. ओके, इस तरीके से टेक्स्ट शैडो हो गया. We can take it in hex value like this. तो ये हो गया टेक्स्ट शैडो इस तरीके से. सो इसमें और भी प्रॉपर्टी होती है, बट बेसिक प्रॉपर्टीज़ ये हैं. ठीक है, एंड अब हम देखते हैं CSS फॉन्ट के बारे में. तो फॉन्ट में क्या क्या होता है. फर्स्ट, इफ यू वांट टू इंक्रीज और डिक्रीज द फॉन्ट साइज, सो वी हैव फॉन्ट साइज. द फर्स्ट प्रॉपर्टी, फॉन्ट साइज, वी वांट टू गिव द फॉन्ट साइज टू 20 पिक्सल. सो पिक्सल हियर इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट. ठीक है, तो फॉन्ट साइज का 20 पिक्सल हो गया. ठीक है, एंड वी कैन गिव फॉन्ट साइज टू EM also, like 12 EM. It is extra large, so if we give 2 EM, so EM क्या होता है, जैसे 1 EM equals to 16 पिक्सल. ठीक है, 1 EM 16 पिक्सल के बराबर होता है. एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट एनीथिंग इन EM, so we have this formula, that is divided by 16. If suppose we have 24 pixel, so 24 divided by 16,
देन कितने भी हो गए, सो 24 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल्स टू 1.5 EM। ठीक है, सो EM is used to maintain same font size for all browsers। ठीक है, तो सेम फॉन्ट साइज को मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 EM दे दिया, दैट मीन्स 62 पिक्सल। सो to maintain the same font size to all the browser, we have to combine the font size with percentage and EM. So in that case we have to give font size that is 100% and then EM value is used for font size। ठीक है, इस तरीके से हम देते हैं। If we want to give a responsive font, then in that case we use font size like 5 VW. VW here is viewport width, like it is viewport width, okay, that is it is 5% of window width, okay, 5% of window width। तो ये क्या होगा, ये ब्राउज़र के अकॉर्डिंग जितना भी विंडो का विड्थ होगा उसके अकॉर्डिंग ये फॉन्ट एडजस्ट हो जाएगा। तो ये एक रिस्पॉन्सिव फॉन्ट देने का तरीका हुआ। तो अभी फॉन्ट साइज इसका इतना है, ठीक है, एंड एज वी डिक्रीज द साइज ऑफ द व्यू पोर्ट the size is reduced, okay, so this is the way of responsive font, okay, let's reduce it to VW, okay। Now this was the font size, then we have font style। font style में normal is by default italic, it will be slightly slant, ये italic हो गया, ठीक है, नॉर्मल देन इटैलिक, देन वी हैव फॉन्ट वेट। सो हाउ मच वेट वी हैव टू गिव, कितना इसे बोल्ड दिखाना है, तो 300 सबसे लाइट होता है एंड 900 सबसे बोल्ड होता है, देन 900 दैट मीन्स फॉन्ट वेट विल बी बोल्ड, सो 900 एंड इफ वी गिव 500 देन फॉन्ट वेट मीडियम, 400 for normal, 600 for semi bold, ओके। तो इस तरीके से फॉन्ट वेट देते हैं, ओके। 100-200 भी होता है, इट डिपेंड्स ऑन द फॉन्ट फैमिली। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लाइक फॉन्ट वेरिएंट। वेरिएंट इज नॉर्मल बाय डिफॉल्ट एंड स्मॉल कैप्स। If we want all the letters in a small capitals, so it is in text transform uppercase. If we reduce, so font variant will be small caps, okay, so this is font variant। And then we have line height property। line height by default अभी मैं यहाँ पर देती हूँ लाइक 24 पिक्सल, ठीक है। दैट मीन्स लाइन हाइट क्या होता है, ये जो टेक्स्ट है और ये जो सेकेंड टेक्स्ट है इनके बीच का जो ये गैप है दैट इज कॉल्ड लाइन हाइट। इफ वी इंक्रीज दिस लाइन हाइट, द स्पेसिंग बिटवीन दीज कैरेक्टर्स आर इंक्रीज्ड। देन वी हैव फॉन्ट फैमिली। आई एम टेकिंग फॉन्ट फैमिली sans serif, okay, let's remove the text shadow to make clear the difference, okay। So this is the sans serif, this is the generic font। generic font we have sans serif, I'm so sorry,
I am taking here font family sans serif, no inverted commas. ठीक है, sans serif. So sans serif creates a clean look. Then we have serif. It creates a corners inside the edges. It creates a corner, slight corners create कर रहा है. Then we have monospace. मोनोस्पेस लाइक एक मैकेनिकल टेक्स्ट की तरह लग रहा है ये. ठीक है, इक्वल स्पेसिंग है. देन वी हैव कर्सिव. ये एक हैंड राइटिंग की तरह लग रहा है, ह्यूमन हैंड राइटिंग की तरह. ठीक है, इफ वी रिमूव टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस सो इट इज़ मोर विजिबल. लाइक स्मॉल कैप्स भी हटा देते हैं. ठीक है, तो ये हैंड रिटन की तरह लग रहा है. देन वी हैव फैंटेसी. तो ये इस तरीके से दिख रहा है. इटैलिक भी हटा देते हैं. ठीक है, तो इसी तरीके से काफ़ी फॉन्ट फैमिलीज और भी होते हैं. तो ये बेसिक जो है ये जेनरिक फॉन्ट फैमिली है. तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ले लिया सैंस सेरिफ. ठीक है, दैट विल क्रिएट अ क्लीन लुक. ओके, सो इन सभी फॉन्ट की प्रॉपर्टीज को शॉर्ट हैंड में we write font style, that is italic. Then we write font weight, that is bold. Then we write font variant, small caps. Then font size 2VW. Okay, 2VW. एंड इस तरीके से स्लैश. देन लाइन हाइट इज 30 पिक्सल. एंड देन वी हैव फॉन्ट फैमिली. ठीक है, इस तरीके से लिख दिया मैंने. ये यहाँ पर हम हटा देते हैं. टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस हटा देते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉन्ट वेरिएंट में भी स्मॉल कैप्स ले लिया है. ये भी हटा दिया. एंड इस तरीके से. सो इट इज़ अपीयरिंग लाइक दिस. सो इटैलिक, बोल्ड, स्मॉल कैप्स, 2VW. फॉन्ट साइज यहाँ से हटा दिया. ठीक है, ये हो गया. तो इस तरीके से हम शॉर्ट हैंड में से लिख सकते हैं. सो वी कैन ऑल्सो ऐड गूगल फॉन्ट टू द पेज. सो फॉर दिस just go to google.com and then search for the Google font. So how to add Google font family? So let's search for Open Sans. And now we have taken this Material Mania. I have selected this style. Okay, so we can add this link to the HTML or we can import this to the CSS file. So we have to create a separate CSS file and then import this CSS, or we can also add this inside the style tag. So I am importing this like with import, and then we have to add the CSS में font family. You have to add font family like यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया like Metal Mania and then cursive. Okay, so it is now cursive Metal Mania. So this was the video. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel to know about the latest updates. Thanks for watching.